Hello and welcome to my YouTube channel Scholars and Curious, and physics is obviously for curious ones. मैं मोनिका श्रीवास्तव आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सॉलिड स्टेट फिजिक्स वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में लेक्चर नंबर 12 and in this lecture we will read a modern theory of specific heat capacity of solids called Einstein's theory. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ की बात करी थी विच वाज द क्लासिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, और उसमें कुछ कमियों के चलते वो थ्योरी फेल हो गई थी और इसलिए हमें क्वांटम एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ी थी। ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि क्यों और कैसे, और जब हमने मॉडर्न थ्योरी को जब हम पढ़ते हैं तो हम आइंस्टीन एस्पेक्ट की बात करते हैं। आइंस्टीन ने अपनी एक थ्योरी दी थी about specific heat of solids. So students and friends, this video is very useful for CSIR NET, JRF, GATE, IIT JEM, JEST, TIFR, etc. aspirants, and you guys are supporting me very well, and I am extremely happy for that. I thank you again and again. More subscribers are adding. You guys are sharing my videos and liking it too. Keep supporting friends, and let's start today's video. So first of all, some details from the previous lectures. Specific heat capacity. What is specific heat capacity? The specific heat capacity of a substance is the amount of energy required to raise the temperature of 1 kilogram of the substance by 1 degree centigrade, and here the expression which is C equals to del E over m delta theta, and we can write it as del E equals to mc delta theta, where m is the mass and c is the specific heat capacity in joule per kg degree centigrade. Delta E is change in thermal energy, which is in terms of joule, and delta theta is change in temperature, which is in terms of degree centigrade. So basically specific heat capacity क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी सॉलिड का, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर या उसका टेम्परेचर, उसकी 1 kg ऑफ अमाउंट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये हम पहले भी देख चुके हैं। हम सीपी और सीवी की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं। देखिए दो केस आपको यहाँ शो हो रहे हैं। द फर्स्ट वन इज CV फॉर गैसेस विच इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, एंड यू कैन सी हियर इज 1 mole gas filled in this container and the volume is constant all over, that is V1. And right side we are increasing the temperature, and we are getting CP for gases in which the pressure is constant. Now we are not releasing or adding pressure, we are just keeping the pressure constant, and we can observe easily that volume is increasing. Firstly the volume was V1, and then some delta V change in volume, and the final volume we are getting V2, or when we are compressing we will reduce the volume. So that is CP. CP is on constant pressure specific heat, and CV is constant volume specific heat. These two cases are for gases only. For solid, when we talk about solid state and when we talk about specific heat of solid state, we can't keep pressure constant and increase the temperature so that we can increase or decrease the volume. We can't do this for solids. This we can do only for gases. So we will talk CV in our whole the lecture. Throughout the lecture we will talk CV only. Okay. Now let's start a modern theory of heat capacity.
प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्लासिकल थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी बताई थी, दैट वाज बिलोंगिंग टू डुलोंग-पेटिट लॉ, and this modern theory of heat capacity is belonging to the assumption of Albert Einstein. So the modern theory of the heat capacity of solid states that it is due to lattice vibration in the solid and was first derived in crude from its assumption by Albert Einstein in 1907. देखिए दोस्तों, डुलोंग-पेटिट लॉ बहुत हद तक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझा पाया एट हाई टेम्परेचर्स। हमने एक ग्राफ देखा था, स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर में ग्राफ था, जो कि जब हम हाई टेम्परेचर्स की बात कर रहे थे तो वो वैल्यू दे रहा था 3R, बट जब हम लो टेम्परेचर्स की बात कर रहे थे, क्योंकि लो टेम्परेचर्स पर जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का आता है, जबकि लो टेम्परेचर्स पर ये ग्राफ जो है वो वैलिड नहीं रह जाता, तो लो टेम्परेचर्स पर ये थ्योरी इनवैलिड हो जा रही थी, और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमें मॉडर्न थ्योरी की जरूरत पड़ी। मॉडर्न थ्योरी लेकर आए सर अल्बर्ट आइंस्टीन 1907 में। डुलोंग-पेटिट ने जो अपने अजम्पशंस किए थे, डुलोंग-पेटिट ने लैटिस वाइब्रेशंस के थ्रू जो मॉलिक्यूल्स लैटिस वाइब्रेशंस करते हैं उन्हें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के जैसा माना था, और वो मानकर उन्होंने एनर्जी का एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में वो एक्सप्रेशन भी बताया था, और ये भी बताया था कि किस तरह से उन्होंने n harmonic oscillators oscillating in 3 dimension and then 3 n harmonic oscillators oscillating in 1 dimension, ऐसा उन्होंने अज्यूम किया था। वैसा ही सेम अजम्पशन आइंस्टीन ने भी अपने मॉडल में किया, बट उन्होंने जो एक्सप्रेशन डेराइव किया वो मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स को यूज करके डेराइव किया, और हमने डुलोंग-पेटिट लॉ में इंटीग्रेशन काम में लिया था, बट आइंस्टीन ने अपने डेरिवेशन में उसको समेशन में कन्वर्ट कर दिया, और जो एक्सप्रेशन आएगा वो आप इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। मैं उसको लो टेम्परेचर्स के लिए भी आपको डेराइव करके बताऊंगी और हाई टेम्परेचर के लिए भी डेराइव करके बताऊंगी, और ये बताऊंगी कि लो टेम्परेचर पर डुलोंग-पेटिट लॉ कहाँ गलत हो रहा था जिसे आइंस्टीन ने मॉडिफाई किया था। So basically there is some equivalent form of this law statement which is basically just same as Dulong-Pettit law. An equivalent statement of the Dulong-Pettit law in modern terms is that regardless of the nature of substance, the specific heat capacity C of a solid element is equal to 3R upon M, where R is the gas constant and M is the molar mass. Thus the heat capacity per mole of many elements is 3R. So one case is for Einstein theory is just same as Dulong-Pettit law. Dulong-Pettit law में क्या था कि जो हम specific heat capacity get कर रहे थे, that was 3R, a constant. We were getting this. In Einstein's theory, on high temperature we will get the same value, like we will get 3R for high temperature, but for low temperature we will get something else. Now Einstein's derivation of specific heat formula is based upon the following assumptions. These are some assumptions on which the Einstein's derivation is based, which are: the first one is all atoms of a monoatomic solid vibrate with the same frequency. ये वही assumptions हैं जो हमने डुलोंग-पेटिट लॉ में भी माने थे और उसे एक्सप्लेन किया था। हमने क्या लेना है, हमने जितने भी मोनोएटॉमिक एटम्स लेने हैं, जो मोनोएटॉमिक सॉलिड के जितने भी एटम्स लेने हैं, उन सभी की फ्रीक्वेंसी हमने सेम मानी है, दैट इज न्यू। द फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ एटम्स एंड द रिस्टोरिंग फोर्स, ऑब्वियसली बिकॉज वी विल अप्लाई द हुक्स लॉ F इक्वल्स टू KX, क्योंकि हम उनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं उन्हें स्ट्रिंग के जैसा मानते हैं। दीज एटम्स like Planck's oscillators are in equilibrium with either vibrations of the same frequency. Instead of classical law of equipartition, that is half kT for each degree of freedom, Einstein uses the mean
एनर्जी ऑफ प्लांक्स ऑसिलेटर फॉर ईच डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। देखिए ये जो पॉइंट है ये ड्यूलोंग पेटिट लॉ से अलग है। ड्यूलोंग पेटिट लॉ में हम क्या कर रहे थे, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी लगा रहे थे, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ के टी एनर्जी अज्यूम कर रहे थे, फिर उनका एडिशन कर रहे थे और हम एक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल रहे थे। बट आइंस्टीन डेरिवेशन में हम ऐसा नहीं करेंगे। आइंस्टीन ने क्या अजम्पशन लिया है, आइंस्टीन ने यहाँ पर अपना अजम्पशन लिया है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम प्लांक्स ऑसिलेटर की मीन एनर्जी काम में लेंगे। प्लांक्स ऑसिलेटर की मीन एनर्जी क्या होती है, वो होती है E और U इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन ई रेज टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये फोर्थ पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। चलिए नाउ हम थोड़ा सा ड्यूलोंग पेटिट लॉ को रिमेंबर करेंगे। द इनिशियल फॉर्म ऑफ द ड्यूलोंग पेटिट लॉ वाज Cm इक्वल्स टू K। यहाँ पर आप जान रहे होंगे कि C स्पेसिफिक हीट है, M एटॉमिक वेट है और K कोई कांस्टेंट है। और हम जो है बेसिकली 3R एक कांस्टेंट ले रहे हैं। ये भी आपको पता ही है कि M कैपिटल M स्मॉल m ओवर कैपिटल M इक्वल्स टू n होता है, विच इज द नंबर ऑफ मोल्स। Therefore, using uppercase C for the total heat capacity, the lowercase c for the specific heat capacity, हम just value put कर रहे हैं यहाँ पर Cm over m minus k and we are just doing C over n equals to 3R. Therefore, the heat capacity of most solid crystalline substances 3R per mole of substance. This was Dulong Pettit law. मैंने सिर्फ यहाँ आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में से कुछ पार्ट जो है वो रिवाइव करवाया है। अब हम बढ़ते हैं आइंस्टीन्स फार्मूला की तरफ, विच इज द क्वांटम ट्रीटमेंट ऑफ हीट कैपेसिटी। So, as you guys now know that in 1907, Einstein discerned that the basic flaw in the derivation of Dulong-Pettit law lies in the figure of kT for the average energy per oscillator in a solid. हमने एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर इन सॉलिड को अज्यूम करना है ड्यूलोंग पेटिट लॉ की तरह ही, बट हमें इसका डेरिवेशन प्लांक्स ऑसिलेटर से करना है। According to Einstein, the probability f nu that an oscillator have the frequency nu is given by f nu equals to 1 upon exponential h nu upon kt minus 1। ये प्लांक्स फार्मूला से आई है। Hence the average energy for an oscillator whose frequency of vibration nu is average energy per oscillator क्या हो गई अपनी h nu upon exponential h nu upon kBt minus 1। अगर आप मेरे statistical mechanics के वीडियो देखेंगे तो आपको वहां इस एक्सप्रेशन का डेरिवेशन मिलेगा जो कि बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया है। तो अगर आप इसका डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख लीजिए। आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑल्सो इन द description so you can watch from there and not E bar equals to KT. Now Einstein's theory of the heat capacity of solid says that the crystal lattice structure of a solid comprising n atoms can be treated as an assembly of 3 undistinguishable 1D oscillators. ये वो ही assumption है जो हमने ड्यूलोंग पेटिट लॉ में किया था। देखिए n एटम्स हैं, ये इससे जुड़ा है, ये एक एटम और आ गया, फिर ये इससे जुड़ा है, ये एक एटम, ऐसे ऐसे करके n एटम्स हैं, ठीक है। ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में मूव कर सकते हैं, लाइक ये x में मूव कर सकते हैं, ये y में मूव कर सकते हैं और ये z में भी मूव कर सकते हैं। तो क्या हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि 3n डिस्टिंग्विशेबल एटम्स हैं जो 1 डिग्री ऑफ एटम 1 डिग्री वाइब्रेशंस में मूव कर रहे हैं? ओके देखिए वापस सुनिए, n एटम्स हैं जो 3 डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। तो क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि 3n एटम्स हैं जो 1D में मूव कर रहे हैं? यस वी कैन अज्यूम। ओके नाउ द assumption is based on that each atom is free to move in 3 dimensions. Okay. Now in Einstein model the average energy, the expression for average energy will be summation over n Pn epsilon n। मैंने आपको बताया कि हमने ड्यूलोंग पेटिट लॉ में इंटीग्रेशन यूज किया था, आइंस्टीन्स मॉडल में हम समेशन यूज कर रहे हैं। समेशन इसलिए यूज करें बिकॉज वी विल एड ऑल द एनर्जीज ऑफ ऑल द ऑसिलेटर्स विच वी आर अज्यूमिंग एटम्स एज ऑसिलेटर्स, एंड जो एक्सप्रेशन है वो हमारा हम ये यूज करेंगे। Average energy of a harmonic oscillator and hence of a lattice mode of angular frequency at temperature T। अब आप जानते हैं कि प्लांक्स ऑसिलेटर के लिए हर एक ऑसिलेटर की एनर्जी कितनी होती है, n प्लस हाफ एच कट ओमेगा होती है। कुछ लोग एच कट को एच क्रॉस भी बोल रहे हैं, तो दोनों चीजें सही हैं, कुछ किताबों में वैसा है कुछ। ओके द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑसिलेटर बीइंग इन दिस लेवल एज गिवन बाय बोल्ट्जमान फैक्टर
ये हमारी प्रोबेबिलिटी है, द एक्सप्रेशन ऑफ पी एक्सपोनेंशियल माइनस ई एन अपॉन केबीटी। हम क्या करेंगे, जस्ट पी की वैल्यू को ये रखेंगे और ई एन की वैल्यू को ये रखेंगे और हम इसको डेराइव करेंगे। देखिए हमारा एक्सप्रेशन था एवरेज एनर्जी इक्वल्स टू समेशन ओवर एन पी एन एप्सिलॉन एन और ई एन। तो हमने क्या किया, सिंपली प्रोबेबिलिटी की और एनर्जी की वैल्यूज रख दी और हमको क्या मिला, एवरेज एनर्जी इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा एक्सपोनेंशियल माइनस एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा अपॉन केबीटी over summation n equals to 0 to infinite exponential minus n plus half h cut omega upon kbt। यहां z हम अज्यूम कर रहे हैं एज अ पार्टीशन फंक्शन, हम इसको लेकर चलेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। z इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, ये टर्म है, ये देखिए ये टर्म्स है फ्रेंड्स, ये एच कट ओमेगा को भी हटा दीजिए, ये वाली टर्म है एक्सपोनेंशियल माइनस एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा अपॉन केबीटी। सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं एक बार। हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल के अंदर की टर्म को एक्सपांड कर लिया। एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स को आप कैसे एक्सपांड करते हैं, जिस भी तरीके से आप एक्सपांड करते हैं, 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर एन सो ऑन। सो हमने इसको सबसे पहले समेशन को ओपन किया। सो समेशन को ओपन करेंगे तो n इक्वल्स टू 0 से रखना शुरू कीजिए। जब यहाँ पे 0 आएगा तो क्या बचेगा, एक्सपोनेंशियल हाफ एच कट ओमेगा अपॉन केबीटी, दिस वन। n इक्वल्स टू 1 रखिए तो आपका ये आ जाएगा, n इक्वल्स टू 2 रखिए तो आपका ये आ जाएगा एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या कीजिए, e की पावर एच कट ओमेगा अपॉन 2 केटी को कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बचा 1 प्लस दिस एक्सप्रेशन। और अब आप जब इसको समराइज कर लेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बचेगा, e रेज टू द पावर माइनस एच कट ओमेगा अपॉन 2 केबीटी 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस एच कट ओमेगा अपॉन केबीटी की पावर -1 and we are just doing binomial expansion for x is less than 1। और हमें क्या मिलेगा, हम ऐसा मान रहे हैं कि x इक्वल्स टू माइनस एच कट ओमेगा अपॉन केबीटी, इसको हम x मान लेते हैं ताकि ये एक्सप्रेशन हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए इसको सॉल्व करना। तो हमने जैसे ही उसको x माना, व्हाट वाज आवर इक्वेशन स्टार, हमारी इक्वेशन स्टार ये थी। इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं केबीटी स्क्वायर हाफ केबीटी स्क्वायर 1/z dz ओवर dt। क्यों, क्योंकि हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को तो z मान लिया है, इसको सॉल्व कर लिया है, और अगर इसको z मान लिया है तो ये भी हमारा z हो गया, तो हमारा क्या हो गया 1/z। और ये बेसिकली बायनॉमिनल के थ्रू d ओवर dx की फॉर्म में आ रहा है, तो जो हमारा एक्सप्रेशन है वो बन रहा है केबीटी स्क्वायर 1/z dz ओवर dt। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, केबीटी स्क्वायर डेल ओवर डेल टी ln z भी लिख सकते हैं। सिंपली z की वैल्यू पुट कर दीजिए। z की वैल्यू पुट करने के बाद आपको इसको जस्ट ओपन करना है लोग की वैल्यू में, ये लोग बेस ई पर है और आपको 1 टाइम टेम्परेचर के साथ डेराइव करना है। देखिए जब आप डेराइव करेंगे, ये जो डिफरेंशिएट करना है आपको, ये जो डिफरेंशिएशन है ये आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखे हैं वही है। सिंपली आप डिफरेंशिएट करते जाइए और जैसे ही आप डिफरेंशिएट करके इसको सॉल्व करेंगे, फाइनली यू विल गेट द रिजल्ट ई बार इक्वल्स टू हाफ एच कट ओमेगा प्लस एच कट ओमेगा अपॉन एक्सपोनेंशियल एच कट ओमेगा बाई केबीटी -1। इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन मेरे पास पेपर में किया हुआ है। उस पेपर का जो ड्राइव से लिंक है वो भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगी। अगर आपको इस इंटीग्रेशन को, इस डिफरेंशिएशन को या इस एक्सप्रेशन को अच्छे से ओपन करके सॉल्व करना यहां से समझ में ना आया हो तो आप वहां देख लीजिए और खुद से कॉपी में करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। Okay, now what we are getting E bar equals to half h cut omega plus h cut omega upon exponential h cut omega upon kBt -1. This is the mean photon energy. The first term in the above equation is the 0 point energy. This one, as mentioned before, even at 0 degree Kelvin, atoms vibrate in the crystal, जो कि ये बताती है कि 0 डिग्री केल्विन से भी कम टेम्परेचर पर क्रिस्टल में एटम वाइब्रेट करते हैं और उनकी एनर्जी इतनी होती है, 0 पॉइंट एनर्जी होती है। दिस इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ऑब्वियसली ये सिस्टम की मिनिमम एनर्जी होती है। द एवरेज नंबर ऑफ फोनोन्स इज गिवन बाय बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन एज नंबर ऑफ फोनोन्स एनर्जी ऑफ फोटोन
into equals to second term in epsilon bar which is this one. एनर्जी की टर्म में जो आपकी सेकेंड टर्म है एच कट ओमेगा अपॉन एक्सपोनेंशियल एच कट ओमेगा अपॉन केबीटी -1, अगर आप 1 अपॉन एच ई एक्सपोनेंशियल एच कट ओमेगा अपॉन केबीटी -1 लेते हैं तो ये है आपकी नंबर ऑफ फोनोन्स। ठीक है, इतने नंबर ऑफ फोनोन्स होते हैं आपके पास। द सेकेंड टर्म इन मीन एनर्जी इज फोनोन कॉन्ट्रीब्यूशन टू थर्मल एनर्जी। ये थर्मल एनर्जी में फोनोन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन भी शो करती है। तो इसमें दो टर्म्स हैं आपके पास मीन फोनोन एनर्जी में। पहली टर्म क्या शो करती है, 0 पॉइंट एनर्जी शो करती है, वो एनर्जी जिससे लैटिस वाइब्रेशंस होते हैं इवन एट 0 डिग्री केल्विन ऑल्सो। जो सेकंड टर्म है वो आपकी शो करती है मीन एनर्जी इन इज जो शो करती है फोनोन का कंट्रीब्यूशन थर्मल एनर्जी में। ओके, चलिए तो देखिए अगर हम इस एवरेज एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स अजम्पशन हमारा ग्राफ ये आता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम दो केसेस लेंगे, लो टेम्परेचर लिमिट लेंगे और हाई टेम्परेचर लिमिट लेंगे। ध्यान से समझिए अब इनको। हम सिर्फ एवरेज एनर्जी की बात कर रहे हैं, फिर मैं स्पेसिफिक हीट की भी बात करूंगी और उसके भी हम दो केसेस लेंगे। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जैसे जैसे वीडियो लेक्चर आगे बढ़ेगा। तो देखिए, लो टेम्परेचर लिमिट यानी कि टेम्परेचर बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत कम है इसका मतलब एच कट ओमेगा की वैल्यू केबीटी से बहुत ज्यादा है। तो हमारा एनर्जी की टर्म क्या थी, ई बार इक्वल्स टू हाफ एच कट ओमेगा प्लस एच कट ओमेगा अपॉन एक्सपोनेंशियल एच कट ओमेगा अपॉन केबीटी -1। देखिए एच कट ओमेगा बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या हो गई, ये वैल्यू भी बहुत छोटी हो गई। ये वैल्यू क्या हो गई, ये बहुत बड़ी हो गई। 1 अगर इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल की वैल्यू अब बहुत ज्यादा बड़ी है। तो 1 को नेग्लेक्ट कर दीजिए इसके रेफरेंस में। अब जब ये वैल्यू बहुत बड़ी है तो जब आप इसको एच कट ओमेगा से डिवाइड कर रहे हो तो हम क्या निकाल रहे हैं, ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी हमारे पास क्योंकि किसी भी नंबर में अगर आप बहुत बड़ी संख्या का भाग दे रहे हैं तो वो नंबर बहुत छोटा वैल्यू देता है ऑब्वियसली। तो हम इस पूरे टर्म को ही नेग्लेक्ट कर देते हैं और हमें क्या मिलता है लो टेम्परेचर लिमिट पर जस्ट 0 पॉइंट एनर्जी वी विल गेट। So at low temperature limit we are getting E bar equals to half H cut omega which is this point, this value. Okay, so now we will do some high temperature limit. टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, इसका मतलब एच कट ओमेगा बहुत छोटा है केबीटी की कंपैरिजन में। तो इसका मतलब एच कट ओमेगा इज लेस देन केबीटी। अब हम क्या करेंगे, basically epsilon bar is independent of frequency of oscillation. This is the classical limit because the energy steps are now small compared with the energy of harmonic oscillator, so that epsilon bar is the thermal energy of classical 1D harmonic oscillator. अब हमें सिर्फ thermal energy का एक्सप्रेशन काम में लेना है तो क्या कीजिए, देखिए एक्सपोनेंशियल एच कट ओमेगा अपॉन केबीटी को आपने एक्सपांड किया क्योंकि एच कट ओमेगा बहुत छोटा है, केबीटी बहुत बड़ा है। तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू को हम क्या करेंगे, हम जस्ट एक्सपांड करेंगे। हमको पता है e की पावर x का जो एक्सपांशन होता है वो क्या होता है 1 + x स्क्वायर बाय 2 + x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। सो हमने इसको एक्सपांड किया है, एक्सपांशन की वैल्यू यहाँ पुट करी। जब जैसे ही हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं व्हाट वी आर गेटिंग एप्सिलॉन बाय इक्वल्स टू हाफ एच कट ओमेगा प्लस केबीटी। अब देखिए जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहा है हमारा केबीटी के, ठीक है, यानी कि बेसिकली ये वैल्यू यहां से शुरू हो रही है 0 पॉइंट एनर्जी से और कहां तक जा रही है, केबीटी तक जा रही है। तो दिस इज अवर हाई टेम्परेचर लिमिट। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस। अब हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। अभी तक हमने बात करी एनर्जी की कि आइंस्टीन ने क्या क्या अजम्पशन किए। आइंस्टीन ने अजम्पशन से हार्मोनिक ऑसिलेटर या पार्टिकल्स की एनर्जी कैसे निकाली,
उस एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ आया हमने उसको एक्सप्लेन किया, जो हमें 2 पॉइंट्स मिल रहे थे, 0 पॉइंट एनर्जी के लिए और केबीटी की वैल्यू के लिए। तो हमने लो टेम्परेचर के लिए उसको डिफाइन किया, हाई टेम्परेचर के लिए उसको डिफाइन किया। अब हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज सी उसकी। सो हीट कैपेसिटी सी कैन बी फाउंड बाय डिफरेंशिएटिंग द एवरेज फोनोन एनर्जी, बिकॉज बेसिकली सी वी को हम क्या लिखते हैं, डेल ई ओवर डेल टी लिखते हैं। तो हमको पता है ई कितना है, ई है ये हमारा। तो हम क्या करेंगे, बस एक बार इसका टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे और जो एक्सप्रेशन हमें मिलेगा वो होगा ये। अब हमें करना क्या है, हमें अज्यूम करना है एच कट ओमेगा अपॉन के को थीटा के लिए। ये थीटा जो है वो आइंस्टीन टेम्परेचर बनेगा, इसकी वैल्यू टेम्परेचर की टर्म में हम लिखेंगे। कैसे ये डायमेंशनली मैं आपको बताऊंगी। सो बेसिकली व्हाट वी आर गेटिंग आफ्टर पुटिंग एच कट ओमेगा अपॉन के, वी आर गेटिंग स्पेसिफिक हीट एस सी वी इक्वल्स टू के बी थीटा अपॉन टी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल थीटा अपॉन टी अपॉन एक्सपोनेंशियल थीटा अपॉन टी माइनस 1 की होल स्क्वायर। दिस टर्म वी आर गेटिंग, और ये आपको याद भी करना है। कभी कभी डायरेक्ट भी इसकी जरूरत पड़ती है व्हेन यू आर सॉल्विंग द पेपर ऑफ CSI नेट GRF और गेट एटसेट्रा। अब इसके लिए भी हम दो केसेस यूज करेंगे, व्हेन टेम्परेचर इज हाई एंड व्हेन टेम्परेचर इज लो। तो देखिए हाई टेम्परेचर के लिए तो हमारा ड्यूलॉन्ग पेटिट का लॉ सही ही था, जो वैल्यू आ रही थी वो 3R थी और हाई टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंटली भी वही वैल्यू आ रही थी। ठीक है, तो इसका मतलब हाई टेम्परेचर के लिए आइंस्टीन मॉडल से भी वही वैल्यू आनी चाहिए। तो देख लेते हैं, when T is greater than theta E for Einstein's temperature here, so theta over T is less than 1। अगर ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो एक्सपोनेंशियल थीटा अपॉन टी जस्ट 1 के इक्वल हो गया। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल थीटा अपॉन टी माइनस 1 जो है वो क्या बन गया आपका, थीटा अपॉन टी बन गया, बिकॉज 1 प्लस थीटा अपॉन टी एंड माइनस 1, तो ये 1 से 1 कट गया, तो क्या बन गया आपका, थीटा अपॉन टी बन गया। तो बेसिकली जब आप एक्सपोनेंशियल थीटा अपॉन टी माइनस 1 की जगह थीटा अपॉन टी रखोगे, यहाँ थीटा अपॉन टी रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, थीटा अपॉन टी का होल स्क्वायर, जो कि इससे कट जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, सीवी जो आपको मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, 3n के, ये थीटा अपॉन टी से थीटा अपॉन टी का स्क्वायर कट गया, सो आपको मिलेगा 3n के। अगर आप मोल्स की बात करोगे, पर मोल और पर एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करोगे, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ एवोगाड्रो नंबर लिखोगे। और ये क्या है, के बी। मैंने आपको ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ में भी बताया था कि एन ए और के बी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो एक कांस्टेंट होता है, जो कि गैस कांस्टेंट होता है, जो कि होता है आर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको 3R के इक्वल भी लिख सकते हो। ये वही रिजल्ट हैं जो हमें ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ से मिले थे, और ऐसा ही होना भी चाहिए। तो at high temperature values we are getting the same results as we were getting in Dulong-Petit's law। अब लो टेम्परेचर लिमिट देखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लो टेम्परेचर लिमिट पर ड्यूलॉन्ग-पेटिट लॉ गलत हो गया था, तो क्या आइंस्टीन्स लॉ सही है? तो चलिए देख लेते हैं। लो टेम्परेचर मीन्स T is less than थीटा E, that means थीटा ओवर T is greater than 1। अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि थीटा अपॉन T 1 से बहुत बड़ा है तो हम 1 को नेग्लेक्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल को 1 के इक्वल नहीं कर सकते अब, क्योंकि एक्सपोनेंशियल थीटा अपॉन T भी बहुत बड़ा हो गया 1 के कंपैरिजन में। तो 1 को नेग्लेक्ट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल थीटा अपॉन T ही मिलेगा सिर्फ। अब देखिए यहां पर एक बार देखते हैं, एक्सपोनेंशियल थीटा अपॉन टी माइनस 1 में से हमने 1 को नेग्लेक्ट किया, तो हमें क्या मिल रहा है, एक्सपोनेंशियल थीटा अपॉन टी का होल स्क्वायर मिल रहा है। एक स्क्वायर से ये एक कट जाएगा, तो हमें बेसिकली ये आंसर मिलेगा। अब आप देख पा रहे हो कि यहां क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली वैल्यू डिक्रीज हो रही है स्पेसिफिक हीट की। जब हम टेम्परेचर के साथ देख रहे हैं तो एक्सपोनेंशियली वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब जब टेम्परेचर 0 की तरफ जाता है तो वैल्यू डिक्रीज होती है, और बहुत फास्टली डिक्रीज होती है। अब जब हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं सीवी और टी में, तो हम क्या देखते हैं, हम ग्राफ का कुछ ऐसा वेरिएशन देखते हैं। जब टेम्परेचर 0 की तरफ जा रहा है तो वैल्यू एक्सट्रीमली डिक्रीज होती है। तो ओके, यहाँ पर हमारा आइंस्टीन का लॉ कुछ हद तक सही हो जाता है। ठीक है, इफ एन एलिमेंट हैज अ लार्ज थीटा ई, द रेशियो थीटा अपॉन टी विल बी लार्ज इवन फॉर टेम्परेचर वेल अबव एब्सोल्यूट 0। व्हेन थीटा अपॉन टी इज लार्ज, CV इज स्मॉल। ऑब्वियसली देखिए कुछ ऐसा हमें ग्राफ मिल रहा है,
ये जो कांस्टेंट लाइन है ये 3r वैल्यू को शो कर रही है, यानी ये जो वैल्यू है हमारी ये 3r है, एंड देन इट इज डिक्रीजिंग रैपिडली। देखिए एक एग्जांपल से समझिए, डायमंड के लिए सीवी वर्सेस टी ग्राफ ये रहा। जो पॉइंट्स हैं यहाँ ब्लैक डॉट्स जो है, ब्लैक पॉइंट्स जो है वो एक्सपेरिमेंट वैल्यूज को शो कर रहे हैं, और जो कर्व है वो आइंस्टीन मॉडल का जो प्रिडिक्शन था उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है। देखिए कुछ जो हमारी थ्योरी है वो बहुत हद तक रिलेट कर रही है देखिए डायमंड के लिए, बट आइंस्टीन्स थ्योरी भी परफेक्ट नहीं थी, कुछ गलतियां थी, तभी तो हमें एक और थ्योरी की जरूरत पड़ी, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे डिबाई मॉडल, डिबाई एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। तो हमें क्यों जरूरत पड़ी थी, क्या लिमिटेशंस थी आइंस्टीन थ्योरी की, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और डिबाई थ्योरी का जो इनिशियल फॉर्मेट है वो पढ़ेंगे। मैंने आपको कहा था कि जो आइंस्टीन का जो टेम्परेचर आ रहा है हमारे पास, दिस इज थीटा ई, इसका जो डायमेंशन है वो टेम्परेचर के जैसा होता है। तो दिस इज एन असाइनमेंट फॉर यू गाइज, आप इसको डायमेंशनली सॉल्व कीजिए। एच कट के डायमेंशन निकालिए, ओमेगा के डायमेंशन निकालिए एंड के डायमेंशन निकालिए। मैं बता देती हूँ आपको ये सब चीजें क्या हैं। जो एच कट या एच क्रॉस है वो है रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट, ओमेगा है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑसिलेटर विच वी आर अज्यूमिंग एज इन वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स, और के जो है आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। तो आप इन तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूला से इनकी यूनिट निकालिए और उसको सॉल्व कीजिए, और देखिए क्या आपके पास केल्विन में वैल्यू बच रही है, बिल्कुल केल्विन में ही बचेगी। सॉल्व कीजिए और देखिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपकी ये वैल्यू केल्विन में आई कि नहीं आई, यानी थीटा की जो यूनिट है वो टेम्परेचर की यूनिट से मैच खाती है या नहीं खाती। और जो अपकमिंग वीडियो लेक्चर है उनमें मैंने आपको पहले ही बता दिया, वी विल डिस्कस अबाउट ड्रॉबैक्स ऑफ आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड वी विल डेवलप द assumptions of Debye theory. So guys, you are doing well with solid state physics. So this is a problem for you guys. I am leaving here. You have to solve this problem and tell me the answer. The question is, using Einstein theory of specific heat, which makes use of phonons, it can be shown that the specific heat of a material can be written as, you know, that from Einstein's model. This expression we will get when we will solve the Einstein's model, where the Einstein temperature for a solid is defined as T equals to h cut omega upon k and R equals to NaK is the universal gas constant. And the questions are, question number A, show that as T tends to infinite, we have C tends to 3R, and T tends to 0, we have C tends to 0. तो ये चीजें, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर तो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में ही बता चुकी हूं, आपको जस्ट इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर बी इज द आइंस्टीन टेम्परेचर फॉर डायमंड इज गिवन T इक्वल्स टू 1300 Kelvin. Calculate the angular frequency omega that corresponds to the typical vibrational frequency of normal modes giving rise to the phonons. तो ये आपको बताना है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो आपको बेसिकली वो वाला फॉर्मूला काम में लेना है, T इक्वल्स टू एच कट ओमेगा अपॉन के वाला। ये आपको गिवन है, ये जानते हैं आप, ये जानते हैं, और आपको ओमेगा जो है वो डेराइव करना है। तो मैं आपको हिंट भी साथ में दे रही हूं यहाँ पर, ताकि आप इनको सॉल्व कर सकें। ओके, सो वी वर हियर। ओके, और थर्ड जो है वो आपका टिपिकल मेटल्स हैव TE अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 200 Kelvin. कंपेयर द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ डायमंड एंड टिपिकल मेटल व्हेन बोथ आर एट रूम टेम्परेचर। आपको डायमंड के लिए दिया हुआ है, टिपिकल किसी भी मेटल, टिपिकल मेटल के लिए आपको यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया। आपको स्पेसिफिक हीट निकालनी है दोनों की, लो टेम्परेचर पर भी और हाई टेम्परेचर पर भी, यानी कि रूम टेम्परेचर पर भी, और आपको इसको और इसको कंपेयर करना है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आज का असाइनमेंट है। और आपको एक क्वेश्चन और करना है कि आपको ये बताना है कि थीटा ई जो है वो उसकी यूनिट टेम्परेचर की यूनिट से मैच खाती है या नहीं, यानी थीटा ई इक्वल्स टू एच कट ओमेगा अपॉन के था ना, तो आपको ये बताना है कि एच कट ओमेगा अपॉन के की जो डायमेंशंस हैं वो फाइनली केल्विन की ही डायमेंशन है। And this was all for today. Keep supporting guys. If you have not subscribed my channel yet, please do subscribe and press the bell icon so that you can get the notifications of fresh videos.
like, subscribe and share to your friends too. Keep working hard, stay home, stay safe. Thank you.